A very good afternoon to one and all guys. My name is Shivam Sarate and in this video we are going to understand the chapter number 12 of class 10. Now it is your board exam. I hope you will try to understand what I am teaching. It is your revision video, so it help you a lot. So guys, please try to understand. I will explain you each and everything in a simple manner. Don't worry, I will use the language in a Hindi as well as English. So terminology will be in an English language, but I will explain you in Hindi, so it become easy and relevant for you to understand. So guys, without wasting the time, I am going to start my video. But before this, about my working experience guys, I have a working experience of more than 5 years in teaching Pan India, and I hope you will believe me and please focus in this video. So first we will start from the name of the chapter. What is the name of the chapter? Is electricity. So first we will see what is electricity, what is the definition of electricity. Generally, electricity, in your book it is written here, the definition of electricity is the flow of current. Generally the electricity, it is the flow of electric current. What is electricity? Electricity is nothing, it is generally the flow of electric current. But if you are going to learn the actual definition of electricity, or if we will see the actual definition of electricity, so what we write? We write that electricity is nothing, it is the form of energy. It is the form of energy by which two objects either repel or attract each other. So you will get two definitions here. First, the common definition: electricity, it is the flow of electric current. Generally we can say that electricity is nothing, it is the flow of electric current in a conductor or any of the material, but the conductor will be a conducting material is there. So electricity is nothing, it is the flow of electric current. Or second definition, the actual definition is that electricity is nothing, it is a form of energy by which two or more objects either attract or repel each other. It is a simple definition of electricity. सो गाइस मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता. मैं कोई भी मेरा एक सब्सटेंस लूँ, कोई भी मटेरियल लूँ. सपोज मैं अभी ये आयरन का क्लिप ले रहा हूँ. अब यदि मैं इस आयरन के क्लिप में दो वायर फंसा दूंगा और उन दो वायर को यदि मैं बोर्ड में क्लिप कर देता हूँ, बोर्ड के अंदर वो दो वायर को लगा देता हूँ और दो उस वायर को यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ, तो क्या होगा? यदि आप देखोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो होना किसी भी मटेरियल में से, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यदि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो रिपल कर रहे हैं या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस एनर्जी के कारण वो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको इलेक्ट्रिसिटी बोल सकता हूँ. सपोज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से. जैसे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बी ले लिया. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो वो आपस में पास चिपके, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, या तो वो क्या करें? एक दूसरे को रिपल करें. आइदर दे अट्रैक्ट आइदर दे रिपल, या तो वो अट्रैक्ट करें या तो वो रिपल करें. तो जिस एनर्जी के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल कर रहे हैं, वही एनर्जी को क्या बोलता हूँ? मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूँ. समझ में आया होगा आपको. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे. तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी होती है. अब आपका दिमाग चल रहा होगा, सर ठीक है समझ रहे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या तो अट्रैक्ट करना है या तो रिपल करना है. तो जिस एनर्जी के कारण कोई भी दो ऑब्जेक्ट ये चीज़ें हो रही हैं, जिस एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया हमने. अब सर ये अट्रैक्ट और रिपल करते कैसे, ये बताइए आप. सिंपल समझना है किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है. तो आइए वो समझते हैं, इसका ओरिजिनल कंसेप्ट समझते हैं किस तरीके से ये होता है. देखिए, किस तरीके से अट्रैक्शन रिपल्सन होता है. मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट ए ले लेता हूँ ये, और दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैं ये ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ. जनरली समझा रहा हूँ, कोई स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ. आप ग्लास रोड ले सकते हो, एबोनाइट रोड ले सकते हो, फर ले सकते हो. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 12th के इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ, 12th के फर्स्ट चैप्टर में.
मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। देखिए, मैं बोलूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके एटम के बने होते हैं। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ए है, किसका बना हुआ, एटम का बना हुआ। पहले एटम का स्ट्रक्चर समझो क्या होता है। एटम क्या होता है, एक स्पेरिकल बॉडी टाइप होता है, एक स्पेरिकल बॉडी होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और जिसके आसपास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इतना समझिए आप एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके बाहर तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन प्लस दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इतना आपको पता होगा। यदि इनके चार्ज में समझाऊँ आपको, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरली हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली द प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, इसलिए इसका नाम न्यूट्रल से न्यूट्रॉन रखा गया है। अब बोलोगे सर हमने समझ गए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है जो बाहर तरफ न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि मैं एटम का नेचर बोलूँ कि एटम का नेचर होता कैसा है सर बताइए, क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। एटम न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एटम के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था एटम का। इलेक्ट्रिसिटी समझाने से पहले मैंने बताया आपको। अब देखिए, कोई भी मैटर है किसका बना होता है, सर एटम का बना होता है। हम बोल देते हैं एटम के बाहर तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं, एटम के बाहर तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर तरफ क्या होता है, सर न्यूक्लियस होता है। यदि इस सब्सटेंस को भी, इस सब्सटेंस का यदि मैं एटम के बेस में यदि इसको समझाऊं मैं, तो क्या होता है, बाहर तरफ सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और अंदर तरफ क्या होता है, सर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतना हम समझे। अब देखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड हो, मतलब वो न्यूक्लियस जो बहुत दूर हो, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो, थोड़ा उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, और जो आउटर स्फीयर में हो, आउटर सेल में हो वो इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होता है, न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड होते हैं, और जो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेंगे, जो कंपाउंड बनाने में और मॉलिक्यूल्स बनाने में काम करेंगे, उनके फॉर्मेशन में काम करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। ठीक है, समझ गया। तो मैं बोल देता हूँ, सपोज मेरे पास एक एटम ए है, उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है। कैसे है, लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड यानी क्या होता है कि न्यूक्लियस लूजली बॉन्डेड का मतलब होता है, देखिए सपोज मैं बात करूं, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, लेकिन ये क्या है, बहुत दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसको बाहर निकालना इजी होगा। इजी होगा मतलब इसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा सा वोल्टेज या फिर फोर्स देके, तो ये आपस में इजीली निकल जाएगा, और जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, कंपाउंड रहेगा, उसके फॉर्मेशन में काम करेगा, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। और ये दूर है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसको खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, ज़्यादा फोर्स नहीं है इनके बीच में, इसलिए कैसा है, लूजली बॉन्डेड है। तो होता क्या है, देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता इस तरीके से है कि जब आप सपोज सब्सटेंस ए का एटम है, सब्सटेंस बी का एटम है, जब आप आपस में इनको रफ करोगे, क्या करोगे, फ्रिक्शन करोगे, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ, देखिए आप हाथ को गर्म कर रहे हो तो एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी को कौन ले लेगा, मैं बोल रहा हूँ, ये एनर्जी ले लिया इस वाले ने, किसने, इस वाले एटम, ए वाले एटम ने एनर्जी ले लिया। क्या ले लिया, एनर्जी ले लिया। अब भाई एनर्जी लेकर कुछ ना कुछ तो होगा, तो एनर्जी लेके क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये न्यूक्लियस के फोर्स को ओवरकम कर देंगे, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर चले जाएंगे, उसके फोर्स को ओवरकम करेंगे, और ओवरकम करने के बाद क्या करेंगे, ये इस बी वाले में एंटर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इस बी वाले में एंटर कर जाएंगे, यहाँ से जाके, यहाँ से हट के कहाँ चले जाएंगे, वो बी वाले में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे सर बताइए, कैसे जाएंगे, ऐसे रखा हुआ नहीं जाएंगे, ये रखे हुए नहीं जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है,
इनके बीच में फ्रिक्शन करना पड़ेगा। फ्रिक्शन मतलब कुछ ना कुछ आपको इनको रफ करना पड़ेगा बीच में। जब आप फ्रिक्शन करोगे तो मैं बोल रहा हूँ एक वो एनर्जी मिल जाएगी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को कि वो ओवरकम कर सके, उससे बाहर निकल सके, उस एटम से बाहर निकल सके। जब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के कहाँ चले जाएंगे, बी में चले जाएंगे। अब बी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। समझ गए, ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, बी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है उसके पास क्या हो जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन उतनी ही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का जो नंबर रहेगा वो एक घड़ी ज़्यादा रहेगा किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस रहे और प्रोटॉन का नंबर मोर रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, उसमें प्लस चार्ज रहेगा। तो हम बोलेंगे जो ए वाला एटम है इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है सर, इसमें प्लस चार्ज आ रहा है। इसी तरीके से यदि बी की बात करूं, बी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोर है और प्रोटॉन क्या है, लेस है, कम है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का फंडा, एक बॉडी में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी बॉडी में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण कोई भी दो बॉडी आपस में या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपल करेगी। आ रहा है समझ में। और यही जो चार्ज के फॉर्म में जो एनर्जी है उनके पास, इसी एनर्जी को तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको बेसिक कंप्लीट समझ में आया होगा, मैंने अच्छे समझाया है। तो इलेक्ट्रिसिटी समझे क्या होता है, कोई भी बॉडी में चार्जेस के कारण जो अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रोसेस होती है, जो भी फिनोमिना हो रही है, उस फिनोमिना को क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बोलूंगा। चार्ज कहाँ से आए सर, चार्ज आते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यदि एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपल कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब बता दूं मैं अट्रैक्शन और रिपल्सन किस तरीके से होता है और कैसी बॉडी में होता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक बॉडी ए है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैं दूसरी बॉडी बी ले लेता हूँ जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यदि ये कंडीशन बन रही है, एक बॉडी में पॉजिटिव है एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, तो इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज वाली बॉडी होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। द बॉडी विच कंटेन अपोजिट चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। The body which contain opposite charge always attract each other. Due to the nature of this opposite charge, they attract each other. Now, that's why it shows the property of attraction. Second thing I am explaining you. Suppose if a body A contain positive charge, यदि एक body A है उसमें positive charge है and another body B also contain a positive charge, then due to the same nature of this charge का सेम नेचर होने के कारण ये क्या शो करेगी, रिपल्सन शो करेगी। क्या शो करेगी, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। द सेम चार्ज विल ऑलवेज रिपल ईच अदर ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ चार्ज। अब बॉडी ए कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड बी ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ द चार्ज दिस टू बॉडीज विल रिपल ईच अदर। अब सर आपने पॉजिटिव का लगता है, यदि इनमें नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता, सेम नेगेटिव होते तब भी वो रिपल करती। यदि ए बॉडी में नेगेटिव होता और बी बॉडी में नेगेटिव होता तब भी वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपल करती। क्यों रिपल करती, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम चार्ज, यदि कोई दो बॉडी में सेम चार्ज है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। सो मुझे इतना पता लग गया है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको 4-5 पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जनरली इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज द flow of charges in unit time। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कुछ नहीं होता, चार्ज का फ्लो होना किसी एक समय के अकॉर्डिंग। कोई एक समय में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर एक बॉडी में ही चार्ज फ्लो हो रहा है। सपोज मैं बोल दूं ये मेरे पास एक बॉडी है ए, यदि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है तो जितने समय तक चार्ज फ्लो होगा या फिर जो भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं
उसी चार्ज को क्या बोलूंगा मैं कि इस बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कुछ नहीं होता, करंट क्या होता है, कोई भी बॉडी में से जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। तो चार्ज के फ्लो होने को ही क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको किससे बताते हैं, आई से बताते हैं। तो आई क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन टी। तो Q क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक बॉडी में टाइम की अपेक्षा, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई है। क्या रिप्रेजेंटेशन है, आई। और यदि मैं इसकी बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं, एम्पियर में। जैसे आपको पता है ना, लेंथ को मीटर में नापते हो, मास को केजी में नापते हो, इसी तरीके से करंट को आप नापोगे, जो मेजरिंग यूनिट होती है करंट की इज एम्पियर। द मेजरिंग यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो करंट को किस में नापते हैं आप, एम्पियर में नापते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट को नापने में, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, अमीटर बोलेंगे। अमीटर क्या होता है, अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में मदद करता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करोगे, तो वो क्या होता है, मेरा अमीटर होता है। जैसे मैं बोल दिया, मेरी ये बॉडी है, इस बॉडी में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मैंने दो तार लगा दिए, तो दो तार मतलब चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा, इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो जो भी चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको करंट बोलूंगा। और कितना करंट फ्लो हो रहा है यदि वो मुझे नापना हो, तो मैं किसका हेल्प लूंगा, अमीटर का हेल्प लूंगा। किसका हेल्प लूंगा, अमीटर। और अमीटर किस में रीडिंग बताएगा, एम्पियर में बताता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, माइक्रो में हो रहा है, मेगा में हो रहा है। तो ये चीजें हमें याद रखना है कि कैसा फ्लो हो रहा है। जनरली मैं आपको 2-3 यूनिट बता देता हूँ कि कभी आ जाता है कि करंट माइक्रो में दिया हो, मिली में दिया हो, नैनो में दिया हो, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो याद रखना, 1 मिली अमीटर होता है, 1 मिली एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर। यदि मैं बोलूँ 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर। और यदि 1 नैनो एम्पियर हो गया, ये किसके बराबर होता है, ये 10 की पावर -9 एम्पियर के बराबर होता है। ये 3 चीज़ से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, मिली, माइक्रो, नैनो। देखो होता क्या है, करंट को किस में नापते हैं, जैसे यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो यदि कोई भी क्वेश्चन आपको मिली में दिया हो, माइक्रो में दिया हो और नैनो में दिया हो, मतलब करंट आपको मिली में दिया हो, बोल दिया कि 10 की पावर -3, या फिर बोल दिया 10 मिली एम्पियर करंट है, 20 मिली एम्पियर करंट है, 5 नैनो एम्पियर करंट है, तो आपको सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड यूनिट एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9। आइए अब एक्चुअल बेस में समझते हैं कि करंट की और डेफिनेशन क्या होती है, और किस तरीके से आप करंट को बोल सकते हो, करंट को किस तरीके से आप और बता सकते हो। तो यदि मैं जनरली बताऊं, करंट की सेकंड डेफिनेशन बताऊं, तो करंट होता क्या है, फ्लो होता है। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, यदि कोई भी कंडक्टर है, सपोज मैं कंडक्टर बना दे रहा हूँ, ये मेरा एक सेल है, क्या है, सेल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट, ये मेरा आई करंट दे रहा है, ठीक है, ये मेरा की है और ये मेरा बल्ब है। की क्या काम करता है, इस सर्किट को ऊपर और ओपन और क्लोज करने का काम करता है। ओपन सर्किट क्या होता है, जब की ओपन रहे तो वो सर्किट को ओपन सर्किट बोलेंगे। क्लोज सर्किट जब की बंद हो जाए, जिससे करंट फ्लो हो, तो क्लोज सर्किट होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, करंट क्या होता है, करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यदि कोई भी मटेरियल में से, सपोज ये मेरा मटेरियल, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोल सकता हूँ, मैं करंट बोल सकता हूँ। अब आप पूछोगे सर बताइए इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर देन अदर पार्टिकल्स। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, बहुत हल्का होता है। दूसरा पार्टिकल की बात करोगे, प्रोटॉन की बात करोगे, न्यूट्रॉन की बात करोगे, तो उनका मास ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, हल्का होता है। तो जो चीज़ हल्का होता है उसको ड्रिफ्ट करवाना ईजी होता है, उसको फ्लो करवाना ईजी होता है, इसलिए
इलेक्ट्रॉन का मास कम है, फ्लो करवाना इजी है, थोड़ा सा पोटेंशियल से थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा उसको फ्लो करवाने के लिए, वो इजीली फ्लो हो जाएगा सर्किट में। तो इसलिए हम क्या एजम्पशन लेते हैं, हम लेते हैं कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्यों होता है? मास कम होता है अदर पार्टिकल की अपेक्षा, इसलिए करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर होता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है करंट की? तो कन्वेंशनली जो डायरेक्शन दिया है, यदि आपका देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा इलेक्ट्रॉन भाई, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये प्लस टर्मिनल से, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा होगा? अपोजिट तरफ फ्लो हो रहा होगा। करंट किस तरफ फ्लो हो रहा होगा? अपोजिट तरफ, यदि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो। आई होप समझ गए होंगे करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है? क्योंकि उसका मास कम होता है अदर पार्टिकल की अपेक्षा। दूसरी चीज हमने बता दिया था, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या होता है? क्यू चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। अब देखिए क्यू और बता दूं मैं आपको, एक्चुअली छोटे असर टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड वे में आएंगे हम। क्यू क्या होता है? क्यू को मैं चार्ज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? चार्ज। और चार्ज क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? कोई भी मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया एक बॉडी ए है, ठीक है, एक बॉडी बी है, तो इस बॉडी के कारण जो भी ए बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। यदि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों बॉडी क्या करेगी? ये ए बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बी बॉडी क्या करेगी? ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो क्यों करती है? ये चार्जेस के कारण करती है। किसके कारण करती है? चार्जेस के कारण। और चार्जेस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कॉलम। यूनिट क्या होती है चार्ज की? यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट वो क्या होती है? कॉलम होती है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए होंगे, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कॉलम होती है। गाइस इस वीडियो में इतना ही समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं हम, ठीक है।